وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قال اللہ تعالی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں یہ کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ساتھ، ویابی اللہ، اور اللہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس کا نور ختم ہو جائے، یا وہ لوگ اللہ کے نور کو ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ دی آیت نمبر 32 دے اندر یہ بات کہی ہے، مشرکین دا، یہود و نصارہ دا یہ مشن ہے، یہ سوچ ہے کہ اسی ہاتھ کنڈے اس طریقے دے اپنائیے، کم اس طریقے دے کریے جہدے نال اللہ تعالیٰ دا جڑا صحیح سچا سچا دین ہے او دی روشنی نہ پھیلنے پائے، او دی تعلیمات لوگاں تک نہ پہنچے، اور یہ بالکل ختم ہو جائے، ناپید ہو جائے۔ اللہ دی روشنی نو ختم کرن دی کوشش کردے نے، اور مختلف ہتھ کنڈے تے ہیلے بہانے یہ استعمال کردے نے۔ اللہ کہندے نے اس طرح اللہ دا نور نہیں بجھنا، اس طرح اللہ تعالیٰ دا دین ختم نہیں ہونا۔ اگر کوئی زنا دی اجازت دوے، چور رستہ بنائے، لوگ سہولت اٹھان گے، جڑا بندہ گناہ دی دلدل چ پھسیا وہ دل کرے گا میں ادھر نوں جاواں، جڑا چوری کرے گا اور چوری دے اتے کوئی جھوٹا اپنا موقف بنا لے گا تے اب چوری دی سزا تو بچ جائے گا۔ کیا یہ نال اسلام دی شکل یا اسلام دی تعلیمات بگڑ سکتی ہے؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بات کہی کہ یہود و نصارہ جتنا بھی زور لگا لین، یہود و نصارہ جتنا بھی کوشش کر لین، مشرکین جتنی بھی کوشش کر لین، اسلام نو نہیں مٹا سکتے، اللہ دے دین نو نہیں مٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روشنی نو یہودیاں دے گھر دے اندر داخل کیتا، اس پیغام نو عیسائیاں دے گھر دے اندر داخل کیتا۔ بڑے بڑے جڑے انہاں دے مذہب دے پیروکار سن، جدو اللہ پاک نے انہاں نو راہ ہدایت دیتی، اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے ہدایت دے رستے کھولے، پھر انہاں نے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات تے غیر مشروط ایمان لے آندا کہ جویں اللہ دی مرضی جو دے رسول دی مرضی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر فرعون نے جادوگراں نو اکٹھا کیتا، اور اکٹھا کر کے بعد کہی کہ موسیٰ نو شکست دو، یہ جادوگر ہے بڑا وڈا، یہ بڑیاں شوب دے بازیاں وہاندا ہے،
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਰਰਬ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। बड़े बड़े माया नाज जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले ते आए और फिरौन नूं कहन लगे जादू मुकाबला शुरू होने तो पहला असी मूसा नूं हरा देना है, सानू ये तो दस तू सानू देगा की, सानू की इनाम देगा। जो असी मूसा नूं ढा लिया, असी इहनूं हरा दिता। कहन लगा इन्ना का इज़ल्ला मिनल मुकर्रबीन, उस वक्त तुसी मेरे करीबी बन जाओगे, उस वक्त तुसी मेरे करीब हो जाओगे, मेरे वजीरा मशीरा अंदर, मेरे दरबारिया अंदर शामिल हो जाओगे। उस दौर का बड़ा उच्चा अहदा कि बादशाह दी दरबार के अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं बड़ी ही फातिहाना अंदाज ना कहन लगे, हाँ भी मूसा दस तू अपनी चाल पहलों चलेगा कि असी चलीए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे तुसी करो जो करना चाहते जे, अपना वार चलाओ, पहली वारी तुहाडी करके वहो की करना चाहते जे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक च फरमाया उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, आओ अज मूसा नूं शिकस्त होएगी, आओ अज दीन इस्लाम नूं शिकस्त होएगी, मूसा अलैहिस्सलाम दे नज़रिए अकीदे नूं शिकस्त होएगी। क्यों? ये हकीकत नाल ते तल्लक रखदा नहीं, माज़अल्लाह ये ते जादू के जरिए सारे काम करन रहा, ते अज असीं इहनूं हरा देना। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुसीं अपनी वारी पहलो करो, तुहाडी पहली टर्न चलाओ, जो अपना वार चलाना चाहते जे। उन्होंने अपनियां लाठियां अपनियां रस्सियां फेंकियां और वो लोगों नूं हिलदियां जुलदियां सप की शक्ल अंदर नज़र आनी शुरू हो गई। अल्लाह पाक कहते हैं कि हालांकि हकीकत अंदरों सप नहीं बनिया, सहारू आयुन नास, उन्होंने लोगों दियां अखां ते जादू कर दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा परेशान ना हो, जेड़ा तेरे हाथ में सुट है तू भी ये सुट। अल्लाह की जात जिदे नाल होए सारी दुनिया वो टक्कर ते भी आ जाए, वह अकीदा वह तवक्कल अल्लाह की जात ते मजबूत होना चाहिए। परवरदिगार कभी भी उस बंदे नूं ज़ाया नहीं होन देवेगा, कभी उन्होंने दुनिया तो शिकस्त नहीं खान देगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसा सुटिया, वो हकीकत में अजदहा बन गया। अजदहा जिहड़ा हुंदा ना वो सप्पां नालों मतलब बहुत वड्डा सप बन गया और जो कुछ उन्हें सुटिया सी सब कुछ खाना शुरू हो गया। जादूगर समझ गया ये हकीकत है, ये जादू नहीं। असां लोगों दी अखां दा जादू कीता सी, जादूगरां नूं पता सी, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम दा आसा जिहड़ा ना सप बनया तो जादूगर समझ गया कि वाकयातन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे सच्चे नबी ने, ये बिल्कुल हकी दे सच्ची नबी ने, ये कोई जाली या फेक बंदा नहीं। जो ना वेख्या कि वह सप और रस्सियां लाठियां खा गया, सारे कह लगे आ मन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, असी मूसा अलैहिस्सलाम दे रब ते ईमान लै आंदा, असी ये नाल शामिल हो गए। वो जड़ा जिदे खर्चे ते आए सन, जिदे कहन ते इकट्ठे होए सन, और जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं शिकस्त देनी सी, वो कह लगा मेरी इजाज़त तो बगैर ही मोमन हो गए, मेरी इजाज़त तो बगैर ही कलमा पढ़ लिया, तुहानूं मैं खर्चा मैं किया, सारे काम मैं किए, मैनू पुछों बगैर ही मूसा नाल रल गए जे। वो जादूगर कह लगे असी जिहड़ी जिंदगी पहलों गुजार लई, हुण दोबारा असी तेरे वाल नहीं वेखांगे। गुस्सा आ गया, कह लगा मुड़ जाओ अपनी गल तो, अपने अकीदे तो बाज आ जाओ, मैं तुहानूं बड़ी सख्त सज़ा देवांगा, तुहानूं फाहे ला दांगा, सूली लटका दांगा, तुहाडे लत्तां ते बाहां कट देवांगा खिलाफ हिस्से तो। कहन लगे जो मर्जी कर, असी अपने अकीदे तो बाज नहीं आना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नूं मिटाने की कोशिश की गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन नूं बिगाड़न की कोशिश की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे झूठ फैलाया गया, माज़अल्लाह जादूगर है ये नबी पाक नूं कहंदे सन माज़अल्लाह ये फितना परवर है। साडी ज़बान च उहदा तर्जमा ये बनदा कि माज़अल्लाह ये ते घरां च लड़ाई पवाउंदा, भरा इहदी जिहड़ा बंदा गल सुन लैंदा, इहदी गल सुनन तो बाद दो भरा आपस लड़ना शुरू हो जाते हैं।
ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ तक ये गलत फहमी जाती सी। लेकिन अल्लाह पाक ने की फरमाया कुरान पाक के दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जो झूठा परापे गंडा सी ये उन्होंने मूँह दियाँ फूंका ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इस चिराग नूं बुझाया नहीं जा सकता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रोशनी मदम नहीं की जा सकती। बड़े बड़े लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे सुन के आए कि असी सुनिया मक्के च जादूगर आ गया, असी सुनिया जनाब एक बंदा आया मक्के च बड़ी लड़ाई कराउंदा, बड़ा बहक गया, मजनून है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बह के एक बंदा कहन लगा ਉਹ ਮੈਨੂੰ पता लगा तेरे ते जादू हो गया, मैं तेरा इलाज करना चाहना, मैं बड़ा वड्डा हकीम हाँ, बड़ा वड्डा तबीब हाँ, मैं बड़ा बड़ा मुआलिज हाँ, मेरे सामने बैठ के तो मेरे नाल गलबात कर, मैं तेरा इलाज करने वास्ते आया। अस्तगफिरुल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उन खुतबा मसनूना पढ़ के सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। जिस वेले आ सारी पढ़ी ना तो हिल गया अंदरों। अरबी दान सी, अरबी ज़बान नूं समझदा सी, लफ्ज़ां दी गौर करना जानदा सी। जिस वेले उन्हें गल्लां सुनियां वो कहन लगा एक बारी दोबारा मैनूं सुनाओ जे, आ जिहड़ी गल तुहां सुनाई है दोबारा फिर सुनाओ जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फिर सुनाई और जिस वेले एक खुतबा पढ़द्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तो गया, नालों नाल वो भी कलमा पढ़ना शुरू हो गया। लोगों ने क्या लो वो जड़ा सी डॉक्टर जड़ा हकीम असी लैके आया सी, जड़ा असी लियांदा सी वो भी चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे झूठ बोल के गलत बयानी करके परापे गंडा करके इस्लाम दी अल्लाह कहते ने तस्वीर नूं मसख नहीं कर सकते। वल्लाहु मुतिम्मु नूर ही, अल्लाह ने इस नूर नूं मुकम्मल करके छड़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आना है इस रूए ज़मीन नूं मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक, जिथे जिथे ज़मीन है और कोई इट्टां दा घर होए, कोई उन्न दी दा खैमा भी बनया होएगा ना, उत्थे भी 2-4 बंदे रहिंदे होणगे, अल्लाह ने दीन इस्लाम उथों तक भी दाखिल कर देना। दुनिया कायनात ते किते इट्टां दा घर बनया होएगा या उन्न दा खैमा बनया होएगा, उत्थे अगर जिंदा अफराद रहिंदे होणगे अल्लाह ताला उन्हां तक भी दीन इस्लाम दी रोशनी पहुँचाएगा। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम ने जदों अल्लाह ताला ने फतह के दरवाजे खोले, बड़िया बड़िया वड्डियां सल्तनतां फतह हो गई, बड़े बड़े इलाके फतह हो गए और अद्धी दुनिया तो ज़्यादा मुसलमानों का राज तो मुसलमानों का सिक्का चलन लग पिया। मैं बड़ी हैरानगी नाल गल कहना हुन्ना, बड़ा खुश होकर भी ये गल कहना, क्या दौर है हज़रत गालबन उकबा बिन हज़रत उकबा सहाबी है या कोई होर है, उन्होंने अपने घोड़े नूं समंदर के अंदर दाखिल किया और घोड़े के पैर समंदर के पानी अंदर डुब गए, घोड़े के पेट तक पानी आ गया, घोड़े की पुश्त ते सवार ने ते पानी वाले इस तरह मुँह करके खड़े ने ते कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बा मुहम्मद लौला हाज़ल बहर लफ़तहतु दुनिया। ए परवरदिगार ए मुहम्मद रब तू अल्लाह वेखण है, मैनू रोवे ज़मीन ते कोई घर नज़र नहीं आता, आ वेख मैं घोड़ा समंदर च दाखिल करता है, अगर मैनू ये पार भी कोई बस्ती नज़र आवे मैं तेरे मुहम्मद दा दीन उथों तक भी लैके जावांगा। अल्लाह ताला ने इस चीज़ नू मुकम्मल किया, इस रोशनी नू मुकम्मल किया। और बेसिक तौर पर अहले किताब के अंदर की खराबी सी, लोगों के कोलों पैसे लैके ते गल नू बदल जाते सन, मसला उल्ट कर देंदे सन, मसले का असल जिहड़ा रंग होंदा सी उन्होंने तब्दील कर देंदे सन, असल जिहड़ी चीज़ होंदी सी उन्होंने बदल के रख देंदे सन। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक कबीले की औरत आई, एक मुकदमा आया, इन्हें चोरी कर ली है और यह वाक़या सब ने सुने हैं कि इन्हें चोरी कर ली है, हुण इस तरह करो इनू माफ़ी दे दो, इनू माफ़ कर दो। क्यों?
इन्हां दे कबीले दा नाम बदनाम होएगा, इन्हां दे खानदान दा नाम बदनाम होएगा। जे इनू सज़ा मिल गई तो बड़ी वड्डी बेइज्जती है। अज भी लोग पहरा देंदे ने कि नहीं यार, किसी तरीके नाल साडे बंदे नूं विचों बचाओ, किसी तरीके दे नाल साडे बंदे नूं मुबर्रा करो, साडे बंदे नूं पाक करो। ये बड़ी बेइज्जती दी बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का पता लगा, आप गुस्से हो गए। आपने फरमाया तुसी यहूदियां ईसाइयां की तरह करना चाहते ने, वो जिन्हां ने तगड़ियां नूं छड्ड दिता ते माड़ियां ते कानून नाफज किया, और जिन्हां ने ताकतवरां नूं छड्ड दिता ते कमज़ोरां दे उत्ते कानून नाफज किया। इहदी वजह तो रब ने उन्हां नूं बर्बाद किया। तुसी अल्लाह दी हद दे अंदर सिफारिश करना चाहते हो। याद रखो, अगर मेरी खुद दी बेटी भी अगर इस तरह का मामला कर दी तो मैं अल्लाह दी हद, अल्लाह का कानून नाफज करन तो उहदे ते भी बाज नहीं सी आना। असल अंदर अल्लाह ताला दसना चाहते हैं कि मैं अपने नूर नू दुनिया कायनात ते मुकम्मल करना है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि, अल्लाह दी ज़ात ओ ज़ात है जिन्हें अपने रसूल नू हिदायत दे के दुनिया ते भेजिया और सच्चा दीन दे के भेजिया। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि सारे मजहबां ते सारे दीनां ते उस दीन नू गालिब कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया सी ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ पैगंबर ऐलान कर दे, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम नू तुहाडे लई पसंद कीता और दीन इस्लाम तो वड्डा मजहब कायनात च कोई नहीं, और इस मजहब तो वड्डा सुच्चा सच्चा खरा दीन कायनात च कोई नहीं। और सारे नबी इसे ही दीन दे पैरोकार ने। तौहीद वाला मामला सब दा एक जैसा ही है। रिसालत दे मामलात जिहड़े ने वक्त दे नाल तब्दील होंदे रहे, उन्हां दे कानून अंदर तरमीम होंदी रही, किते सख्ती होंदी रही। एक जुज़वी तौर पर काम होया, लेकिन अकीदा नज़रिया सब अंबिया दा एक ही सी। अल्लाह दी इबादत करो, एक अल्लाह दी इबादत करो, एक अल्लाह के सामने झुको, एक अल्लाह दी वहदानियत तस्लीम करो। अल्लाह ताला अपनी ज़ात अंदर, सिफात अंदर, अपनी बात अंदर अकेला यकता, कोई उहदा शरीक नहीं, कोई उहदा सानी नहीं, कोई उहदा नायब नहीं, कोई उहदे काम करन विच उहदी मदद करने वाला नहीं। अल्लाह किसे दा मोहताज नहीं। रब नू अपना हुक्म चलान अंदर किसी दी मोहताजगी दा सामना नहीं। सब अंबिया ने यही बात कायनात दे लोगों को समझाई। और अल्लाह पाक फरमांदे ने, मैं अपने दीन नू पूरे दुनिया ते गालिब करने वास्ते भेजिया है, और अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल अल्लाह दा दीन दुनिया ते गालिब आके रहेगा। उन्नी देर तक क़यामत नहीं आनी जिन्नी देर तक अल्लाह दा दीन दुनिया ते गालिब नहीं होएगा। मैं जी हदीस तुहानू सुनाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुए ज़मीन उत्ते कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिहदे अंदर इस्लाम दी रोशनी, दीन इस्लाम दाखिल नहीं होएगा। एक क़यामत तो पहला काम होना है तो तां क़यामत आनी। अगली आयत अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। ऐ ईमान वालियो, बेशक बहुत ज़्यादा राहिब ते मजहबी पेशवा लोगों का माल नजायज़ तरीके नाल खा लेंदे ने। अगर इस आयत नू असी फिट करिए ऐसी जगह ते जिहड़ा मौलवी भैड़ा मशवरा दिंदा है, या किसी का नजायज़ खर्चा करवा दिंदा है, या जिहड़ा दीन इस्लाम नू फिट करके किसी दे कोलों पैसे हासिल करदा है, या दीन दी शरीयत दी शिक नू विगाड़ के उहदे अंदर तब्दीली करके उहदे अंदर सुराख करके कोई दुनिया का फ़ायदा हासिल करदा है, ये सारियां गल्लां उहदे वास्ते। जिस तरह ज़कात का इनकार करने वाले ज़कात का इनकार किया, असी ज़कात नहीं देनी। इस तरह चोर चोरी करे और बाद विच कहे नहीं जी ये माल मेरा है, दावा कर दे, उहदे कोल दलील भी कोई ना होवे। उम्मत मुहम्मदिया दे अंदर भी लोग ऐसे पैदा होए जिन्हें क्या और ते हद नहीं लगेगी। ये दीन दी शक विगाड़ना नहीं तो की है। चोर चोरी करे तो फड़िया जाए तो बाद कहे जी ये माल मेरा है,
मैं तो कसम देना, मैं हलफ देना, जबकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई दावा ना होए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई दलील ना होए, अपना माल साबित करन दी और ते हद लगेगी। इस तरह जना बिर रज़ा, अगर एक औरत एक मर्द अपनी रजामंदी दे नाल गुनाह करते हैं, जना करते हैं, उन्होंने ते हद नहीं लगेगी। क्या ये कानून नहीं है? ये कानून अज दुनिया ते राइज हो रहा है। मर्द दा मर्द दे नाल शादी करना जायज़ है, कर सकता है, ये कानून नहीं बनता पिया। यहूदियां ईसाइयां ने काम शुरू किया, आस्ता आस्ता मुसलमानों च भी आ रहा है। आ जेड़े मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला नारा लाते हैं ना, इन्हां विच ऐसे बदबख्त है ने जेड़े पहलों दबे लफ्ज़ों च गल करते सन, हुण खुले लफ्ज़ों च कहन लग पे ने कि असीं ते आने निकाह होना ही नहीं चाहिए, निकाह वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई बंदा बंदे नाल शादी करना चाहे तो यदी भी इजाज़त होनी चाहिए है। ये नारे लगन लग पे। फिर इसी तरह ज़कात का इनकार करने वाले, उशर का इनकार करने वाले और दीन दे मसले वेच के दुनिया का फ़ायदा हासिल करने वाले, अल्लाह पाक फरमाते ने ये बातल तरीके दे नाल लोगों का माल खाते हैं। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते तो रोकना चाहते हैं। असल अंदर अल्लाह का कानून नाफज होने तो रोकना चाहते हैं। अल्लाह की जिहड़ी मर्जी के मुताबिक जिहड़ी शरीयत है, उस शरीयत नूं नाफज होने तो रोकना चाहते हैं। मेन चीज़ असल च आए कि अल्लाह ताला ने जी इन्हां पिछली आयात अंदर जिहड़ी बात की सी ना, जिथों यह मजमून शुरू होया है कि जिस तरह मुशरिकीन नाल लड़ना तुहाडे लिए ज़रूरी है, इस तरह अहले किताब नाल और इन्हां ईसाइयां नाल यहूदियां नाल भी लड़ो और इन्हां नाल भी किताल करो। ये भी अल्लाह के दीन के ताबे होण, ये भी मुसलमानों के ताबे होण, या तो दीन इस्लाम च दाखिल हो जाण तो या फिर मुसलमानों नूं टैक्स दिया करन, ये जिजिया दिया करन। इस तो इलावा इन्हां दा कोई हल नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक च गल कहती सी, अखरजुल यहूदा वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, इन्हां बदबख्तां यहूदियां ईसाइयां नूं इस जजीरा अरब चों बाहर कढ़ दवो, क्योंकि इस्लाम नूं गिरान अंदर इस्लाम के खिलाफ जिन्नियां साजिशां इन्हां ने कीतियां ना, पूरे दूजे कबाइल नूं भड़काया भी इन्हां ने। और मुशरिकीन दे मक्का च सन ना, नबी पाक कोलों सवाल करना हुंदा सी ना, इन्हां नूं आके पुछदे हुंदे सन, सानूं कोई गल दसो, असीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों पुछिए, उन्होंने ना आए। सानूं कोई सवाल दसो जिहड़ा असीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुछिए तो उन्होंने ना आए। ये आके इन्हां दे कोलों गल्लां पुछया करदे सन। और फिर इन्हां ने इस्लाम नूं जितना नुकसान तखरीबकारी के जरिए यहूदियां ईसाइयां ने पहुँचाया ना, खास करके यहूदियां ने, होर किसी ने घट ही पहुँचाया। क्योंकि लोगों की ज़हन साजी करना, लोगों को मुतनफर करना, मुसलमानों नाल मुकाबले लिए तैयार करना, ये इन्हां सारियां दी साजिश होया करदी सी। और अज दे दिन तक भी तुसीं वेख लवो, दुनिया के उत्ते नज़र दौड़ा के वेख लवो कि मुसलमानों की हालत ज़ार जिहड़ी इत्थों तक पहुँची है, ये अंदर जिहड़ी प्लैनिंग सी मुसलमानों को बर्बाद करन दा जिहड़ा इन्हां ने प्रापेगंडा सी, वो सब तो ज़्यादा यहूदियां ते ईसाइयां दा सी। कुछ मुसलमानों की अपनी बेहिसी, अपनी कम अकली, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी बेगैरती कह लो तुसी, और दुनिया की हिरसो हवस लालच तमा, इन्हां सारियां चीज़ों के पिछे लग के मुसलमान दुनिया ते जलील ते रसवा हो गया ते महकूम हो गया। अल्लाह ताला ने इज्जत दी सी और इज्जत वाला कम इन्हां ने जिल्लत विच तब्दील कर लिया। अल्लाह के दीन नूं छड्डिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी, जदों तुसीं रब दे दीन तो मूँह मोड़ोगे, जिहाद करन तो तुहाडा दिल कतराएगा और बैलों दियां दुम्मां पकड़ के अपनी तजारत, अपनी खेती बाड़ी नूं तुसीं पसंद करोगे, फिर अल्लाह ताला तुहाडे ते जिल्लत मुसलत करेगा, तुहानूं लोगों का गुलाम ते महकूम बना देवे। अज भी तुसीं वेख लवो, मुसलमान लीडर हुक्मरान इन्ने डरपोक, इन्ने बुज़दिल, इतने डरपोक ने कि कोई भी बंदा, कोई जुरतमंद ना कदम चुकन वास्ते, अगे लगन वास्ते तैयार ही नहीं। मर जाएंगे, सही रुड़ जावांगे, तबाह हो जावांगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और असल अंदर जड़ी मौत होंदी है ना, वो इंसान के मिशन नूं ख़त्म नहीं करती, बल्कि उन्होंने परवान चढ़ाती।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈر جاندے اج دین ساڈے تک پہنچدا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکاں تو ڈردے, انہاں دی تکلیفاں تو ڈردے, انہاں دے ظلم و ستم تو ڈردے, جڑیاں مسلماناں نے اول وقت اندر شہادتاں دتیاں نے, اپنے آپ نو ذبح کروایا, اپنے بچیاں نو ذبح کروایا, گھر بار چھڈیا, مال جان دی قربانی دتی, جے وہ نہ دیندے اج اسی نماز پڑھنے ہونا سی, اسی بھی اج مشرک اللہ معاف کرے مشرکاں دی صف دے اندر کھلوتے ہونا سی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے سارے معاملات دنیا تے اپنے دین نو غالب کرن دے نے, نافذ کرن دے نے, اور جو اللہ دے دین نال جڑ گیا, جو اللہ دے قانون نال جڑ گیا, جو رب دے دین اندر آ گیا وہ کامیاب ہے. جڑا بندہ اس تو دور چلا گیا وہ دی دنیا بھی برباد ہو گئی, وہ دی آخرت بھی برباد ہو گئی. کیوں؟ دنیا تے بھی رب نے انہاں نو ذلیل کر دینا ہے, اور آخرت اندر تے اللہ پاک نے انہاں واسطے ہمیشہ لئی جہنم تپا کے رکھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جڑا شرک دی حالت چ میرے کول آ گیا, جڑا مر گیا, جنوں موت آ گئی, وہ بندہ کدی بھی بخشیا نہیں جائے گا, ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن جائے گا. اللہ رب العالمین سانو ہمیشہ دین حق دا پیروکار بنائے, اور جب تک زندہ رہیے اللہ پاک سانو دین اسلام تے قائم اور دائم فرمائے, اور جدو سانو موت آئے اللہ پاک اس وقت بھی سانو ایمان دی حالت اندر اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے, اور دین اسلام نو غیر مشروع طریقے تے, شریعت محمدی نو غیر مشروع طریقے تے اللہ پاک تسلیم کرن دی منن دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.